اگر استعمال کروں تو صرف آپ کی محبت کے لیے استعمال کروں. جس دن تم یہ طے کر کے اٹھو گے پھر دیکھو رحمتوں کی چھما چھم بارش بھی ہوگی. یہی تو ہمیں تاج الشریعہ نے اپنے آخری عمر میں سکھایا تھا. زندگی کسی کے لیے زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے جینا بنتا ہے سب کچھ نبی کے لیے. تو فالتو کیوں پیسے لگنے ہیں زیادہ اجمل پہ نہ ہے پیسے تو لی تھوڑی اپلیکیشن دی میں تو کام کرنا تو بول کر لی کیا ہو گیا حالت میں چھالے نکل نماز پڑھ کر دیکھ کیونکہ اگر میں پیٹ میں درد کیا تو کھانا کہ دوائی لے کر پھر میں بتا تھا تب دیکھ اس سے اچھا حالت میں چھالے نکل رہا ہے کوئی دوا نہیں گرم پانی پی جاتا بس. میرا کیا ہونا ہے. عقل مند آدمی یہ ہے پڑوس میں آگ لگی ہے تو اس کی چنگاریاں میرے گھر کو بھی جلا سکتی ہیں. میرا بھی گھر لکڑی کا بنا ہوا ہے میرے بھی گھر میں آگ لگ سکتی ہے. تمہیں آج یہ احساس دلایا جا رہا ہے جو آس پڑوس میں آگ لگی ہوئی ہے اے مسلمانوں بیدار ہو جاؤ. اگر آج بیدار نہیں ہوئے تو آج ان کی باری تھی کل تمہاری باری آ سکتی ہے. آج تمہاری باری آ سکتی ہے اور تمہیں جس طرح سے آج استعمال کیا جا رہا ہے اس استعمال ہونے سے بچا لو. آپ کو اب موسم آئے گا جہاں لوگوں کی خرید و فروخت گھوڑوں کی طرح شروع ہو جائے گی کتوں کی طرح شروع ہو جائے گی اور یہ درندے ناچتے ہوئے تمہارے پاس ہاتھ پھیلا کر کے آئیں گے اور تمہیں نہ جانے کیسے کیسے وعدے اور دعوے کر کے چلے جائیں گے. کب تک تم بیوقوف بنتے رہو گے. اے مسلمانوں ہوش کے ناخن لو اور سمجھ جاؤ کہ تمہارے ساتھ اتنے سالوں سے ظلم ہو رہا ہے اتنے سالوں سے اور اپنے آپ کو سیکولر کہنے والے آج بھی ساڑی اوڑھ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں گھروں پر. انہیں مسلمانوں کی نہ عزت کی فکر ہے نہ مسجدوں کی پامالی کی فکر ہے نہ ان کو درگاہوں کے جلائے جانے کی فکر ہے نہ ان کو کشمیر کے بہتے ہوئے خون کی فکر ہے. کہیں کی انہیں فکر نہیں. یہ بات اس وقت کریں گے جب ایک کسان کے ساتھ کچھ ہو جائے تو پوری پارٹیاں خیمے سے نکل کر کے سڑکوں پہ آ سکتی ہیں لیکن ایک مسلمان کو موب لنچنگ کر کے مار دیا جائے کوئی پارٹی سامنے نہیں آتی. تم کب تک نہیں سمجھو گے انہیں کب تک نہیں سمجھو گے. سیکولرزم کا پردہ اوڑھ کر کے یہ جو آج بھی تمہارے ساتھ دھوکہ دڑی ہوتی ہے اسی لیے یاد رکھو کل بھی تمہارا سہارا مدینے کا گنبد ہی تھا آج بھی تمہارا سہارا مدینے کا گنبد. اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. آج تمہیں یہ غیرت کے ساتھ بتانا ہوگا ہمارا قائد وہی ہوگا جو میرے مصطفیٰ کی بات کرے گا جو رسول پاک کی بات کرے اور جو مجھے میرے دین سے قریب کرے. میرا وہی قائد ہے. باقی سارے یہ چاکلیٹ دینے والے لالی پاپ دینے والے ان کو اب بچے سمجھ جائیں جوان سمجھ جائیں. ان کو دھول چٹانا بھی تمہیں آنا چاہیے تاکہ تمہارا پاور اور تمہاری طاقت تمہیں معلوم ہو سکے ورنہ ہر 5 سال پر تمہارے ساتھ کھیل ہوتا رہے گا. اب یہ تمام جگہ آگ لگا کر کے تمہیں بتایا جا رہا ہے آگ لگا کر کے بتایا جا رہا ہے جہاں 80
100% है, वहाँ हम चला सकते हैं, तो जहाँ तुम कम हो हम वहाँ बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। मेरे अजीजों, ये बातें सिर्फ दर्द दिल के साथ इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ हम हिंदुस्तान में भीख मांग करके नहीं रह रहे, ये हमारा अपना वतन है। इस वतन को हमने सजाया है, इसको बनाया है। यहाँ पर क्या नहीं किया गया, हजारों की कुर्बानियां हैं। आपको पता है दिल्ली से लेकर कश्मीर तक 30,000 उलमा को दरख्तों पर लटकाया गया था गदर के मौके पर। कितने? 30,000 उलमा जिनकी शहादतें हुई हैं आजादी के मौके पर, गदर के मौके पर। किफायत अली काफी को पढ़ो, आज कोई बोलने वाला तक नहीं उस नाम को। मुरादाबाद के शहर में 3,000 अंग्रेजों ने मिलकर के अल्लामा किफायत अली काफी को गिरफ्तार किया। 7 दिन तक उनके जिस्म पर इस्त्री फेरते थे, गरम इस्त्री पूरे जिस्म पर फेरते, और जब रात के वक्त चमड़ी जलती थी तो जिस्म पर नमक छिड़कते थे। 7 दिन के बाद उस किफायत अली काफी को एक खंबे पर ले जाकर के भरे मजमे में अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ाया था। उसी किफायत अली काफी को की बात मैं कर रहा हूँ जिसने आखिरी वक्त भी ये कहा था फांसी पर जाने से पहले, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफी वो, लेकिन हश्र तक नाम हजरत का जुबानों पर सुखन रह जाएगा। ये कहते हुए फांसी के फंदे को चूम लिए। अल्लामा फजल हक खैराबादी अंडमान निकोबार में जेल में बंद कर दिए गए, मौत वहीं आई। इनायत अहमद काकोरवी जिनको जेल में ऐसे रखा गया था, इतने साल रखा गया कि एक मिट्टी के ढेले से पूरी दीवार पर किताब लिख दी उन्होंने जेल के अंदर बैठ करके। ये सारी कुर्बानियां हमारी हैं। तो आज जब चमन सज गया, अब तुम कहते हो कि तुम हमारे नहीं हो, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारा वतन दूसरा है, तो दर्द तो होगा। जहाँ मेरे आबा व अजदाद दफन है, क्या ये खानकाएं ऐसी हैं जिन खानकाओं के ज़िब सज्जादा आज हमारे सरों के ताज हैं? इनके मोरी से आला इनके अजदाद सब यहाँ पर दफन है, और हमारी यहाँ से आस्था ही नहीं बल्कि हमारी रूह की वाबस्तगी है। ख्वाजा आजम हमारे यहाँ पर सरदार मौजूद है। क्या हम इन तमाम चीजों को छोड़ करके सब खत्म कर देंगे? ऐ मुसलमानों, आज के जो हालात है, तुम्हें ये दज्जाली मीडिया इस तरफ ले जा रहा है कि तुम ये समझने लग गए कि हमको शायद भीख मांग करके रहना पड़ेगा। क्यों भीख मांग कर रहना पड़ेगा? किसी के मुल्क में नहीं रह रहे हो, अपने मुल्क में रह रहे हो, जहां तुम पैदा हुए हो, जहां तुम्हारे आबा व अजदाद हैं। बल्कि फख्र के साथ कहना, हर चीज तो छोड़ सकता हूँ, ख्वाजा आजम का वतन नहीं छोड़ूंगा। और भी चीजें मुझसे ली जा सकती हैं, लेकिन तुम अगर गर्दन पर बैठ करके कहने लगोगे तो ये चीजें हम नहीं छोड़ेंगे। यहाँ हमारी एक दो नहीं हजारों यादें वाबस्ता हैं, बल्कि हमारे ईमान के जराया यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे ईमान के जराया हैं। यही वो सरजमीन है जहाँ बरेली का ताजदार भी दफन है, यही वो सरजमीन है जहाँ महबूब इलाही भी है, साबिर कलियरी भी है। यहाँ पर ही सारे खानकाएं किछो मखदूम किछोचा है, मखदूम मारेरा, मखदूमान मारेरा है, बदायूं, कालपी, बरेली, इसके अलावा ख्वाजा अजमेरी यहाँ पर हैं। क्या ये सारे आस्ताने हमारे ईमान के जराया नहीं है? ये सब चीजें तुम्हारे पास हैं, लेकिन आज जहन ऐसा बनाया जा रहा है कि तुम्हें ऐसा एहसास कराया जा रहा है अब तुम्हारे वोट की भी जरूरत नहीं, तुम्हारे इलेक्शन की भी जरूरत नहीं। और बाकी जो दूसरे सेकुलर लोग आते हैं, सेकुलर अब कोई नहीं रहेगा, एक बात याद रख लेना, कोई सेकुलर नहीं अब यहाँ पर, सिर्फ कहने के लिए है। ये मेरी बातें यही कड़वी लगती है जिसकी वजह से प्रशासन कहता है कि ये कट्टर आदमी है, सख्त आदमी है। अपने हुकूक के बारे में कहेंगे तो कट्टर आदमी है। तुम हमारी जिंदगियों के साथ खेलते रहो, और उन बच्चों को मार डाला, उनके फसादात पर कोई बोलने वाला नहीं है। मेरे अजीजों, आप तस्वीर को अच्छी तरह समझ लो, मैं आपको बात क्यों कह रहा हूँ। जुल्म इतना आम हो चुका है कि हम लोग बोलना भी छोड़ चुके हैं, बात करने से डर रहे हैं। उलमा को भी इस तरह से दबा करके रख दिया गया है। कश्मीर का नाम लेने पर लगता है कि आतंकवादी, दहशतगर्द है। मेरे अजीजों, क्यों इस तरह से हमें नफरतों की इस सरजमीन पर जहर फैलाया जा रहा है, नफरतों की तरह से जीने पर मजबूर किया जा रहा है। कभी ऐसा नहीं था, लेकिन ये पिछले चंद सालों में बहुत ज्यादा शिद्दत बढ़ गई, सब इसको महसूस कर रहे हैं। और मैं उन लोगों को ये मैसेज देता हूँ, अगर ये मेरा पैगाम वो लोग सुनते हैं जो प्रशासन में हो,
या हुकूमत के आला इक़्तिदार पर बैठे हो तो याद रख लो, लगेगी आग तो आएंगे मकान कई जद में, लगेगी आग तो आएंगे मकान कई जद में। यहाँ हमारा ही मकान थोड़ी है, सब चलेंगे। ये बात तो होकर रहेगी, फसादात होते हैं, फितना अंगेजियां होती हैं, तो चलेंगे सब जगह पर, नुकसान सबका होगा। जंग में कभी अमन नहीं हो सकता, जंग में कभी किसी का भला नहीं हो सकता। इसीलिए इस्लाम कहता है ला ततमन्नौ लिक़ा अदुव्विकुम, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं तुम अपने दुश्मन से मुठभेड़ होने की तमन्ना भी मत रखना, आरज़ू मत करना कि जंग हो जाए अभी और मैं खड़ा हो जाऊं, नहीं, आरज़ू भी मत करो। मेरे आका ने मना फरमाया। लेकिन अगर कोई सर पे सवार हो जाए तो फिर कदम भी पीछे मत हटाना, फिर साबित कदम रहना। हाँ, फिर उसके बाद हम बुज़दिली की बात नहीं करेंगे। फिर अगर तुम्हारे सर पर कोई सवार हो गया तो अल्हम्दुलिल्लाह हम दुनिया को बताएंगे हम भी हुसैन करबला वाले हैं, हम बचपन से दास्ताने करबला सुनते हुए आए हैं, और मौत क्या चीज़ है हमने अपनी आंखों से बहुत करीब से देखा भी है और कानों से सुना भी है। हमारा लक़ब एक है कफन बरदोश। आप देखें मुसलमान को कहा जाता था ये अपने कंधे पर कफन लेकर के चलता है, मैं तो एक कहता हूँ ये हमारा अमामा भी कफन बन जाएगा। हमें इस बात का खौफ नहीं कि किस धरती पर हमारी मौत हो जाए। मेरे अजीजों, हमें सिर्फ और सिर्फ इस बात की फिक्र है जहाँ रहेंगे हक बात बोलेंगे और सर चढ़ करके बोलेंगे। तुम अगर दबा सकते हो तो दबा करके देख लो, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने वो लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही उभरेगा, जितना ही दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। इन फसादात और इन जुल्मों के खिलाफ मैंने बात सिर्फ इसलिए छेड़ी कि तुम्हें आज अगर नजात का जरिया है तो के गुलामों ने जो कुर्बानियां दी हैं वो एक दो नहीं है। उनके जिस्म छलनी हो गए, कट गए, लेकिन उन्होंने इज्जतें पाई हैं, कभी उनके अंदर कोई नक्स नहीं आया। उन सहाबा को आज भी हम सलाम पेश करते हैं जिन्होंने नामूस रिसालत के लिए अपने जिस्मों की कुर्बानियां दी हैं। ऐ मुसलमानों,